Okay, so friends, last lecture you know that very IMP part 3, and in part 3 we covered very important points about the motion of charged particle in a magnetic field. याद करते थोड़ा. You know that very well any charged particle enters, or I can say that velocity of charged particle remains perpendicular to magnetic field. If V is perpendicular to magnetic field, then you know that very well charged particle performs circular motion. In the last part we discussed the radius of the circular path, frequency, periodic time, lots of points. After that we discussed very important point. Second case, if velocity remains parallel or anti-parallel to magnetic field. In this situation you know that very well what happens. Particle performs linear motion because no force, so it moves along straight line. Third case, very IMP. If a particle enters by making any arbitrary angle, that means the velocity makes any arbitrary angle with magnetic field, that means not 0 degree, not 180 degree, not 90 degree. In this situation, you know that particles perform helix path or helical motion. And helical motion due to two components, parallel, perpendicular, and one word also we discussed, pitch, you know, the linear distance. And based on these all points today, you know that very well in part 3 I told you that in part 4 we discuss only numericals and MCQs. तो लोग जिसे कह सकते हैं दोस्तों, आज का जो पार्ट है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पार्ट 4, totally you can see that NCERT related numericals and very IMP JEE NEET questions. अगला पार्ट भी थोड़ा इसमें रहेंगे, don't forget. So friends, without wasting time, you can see here we can say one diagram is already given. You can see here the magnetic field already in this direction and charged particle passing through magnetic field with velocity v. But check the angle here, 90 degree, that means magnetic field and velocity already perpendicular to each other. Here particle enters in this magnetic field, but we can say that in such a way that it makes 90 degree angle with the magnetic field. What is the intensity of magnetic field? 6.5 Gauss. You know that Gauss, it is 6.5 into 10 raised to minus 4 Tesla, because 1 Gauss 10 raised to minus 4 Tesla we have discussed. Okay friends, here velocity value given, don't worry, mass of this particle also given. Now your target to find the type of trajectory. Obviously velocity remains perpendicular, then particle performs circular motion. But in this question we have to explain why. So we'll write few points. Here the velocity is perpendicular to magnetic field. So magnetic force acting on charged particle, magnetic force acting on charged particle provides necessary centripetal force. You can see that this is magnetic force. You can see magnetic force perpendicular to B and V. This is the direction, and this magnetic force always towards the center. So that's why this magnetic force provides necessary centripetal force to perform circular motion. So one point is clear. Here particle performs circular motion. ये सब लिखना पड़े, हम जानते हैं, no doubt. So here centripetal force mv square by r is equal to magnetic force. Directly I can write QEB. You know that QEB sin theta, but theta 90 degree. So direct लिख देने का अपन लोग जानते हैं, ये mv upon QB. This is the radius of this circular path. R is the radius of circular path. Now we would like to find the value of this radius. Already we can say that some data with me, so I can put directly. Here you can see that mass already 9.1 into 10 raised to minus 31, because we are discussing for electron. Speed already given 4.8 into 10 raised to 6, don't worry. Upon charge, that means 1.6 into 10 raised to minus 19 for electron. Magnetic field 6.5 into 10 raised to minus 4. If you simplify, then answer would be, we can say that 4.2 centimeter. So this is the radius of this circular path. Very easy.
You know that very well. Fundamentally you are very strong, then it become very easy. If charged particle perpendicular to magnetic field, if velocity remains perpendicular to magnetic field, then you know that particle performs circular motion. And what is the radius? The radius of this circular path is given by equation mb by qb. All values with you, so we can easily find radius. अगर यही क्वेश्चन पूछते find the frequency, then so now the frequency of charged particle, that means to perform circular motion, what is the frequency? So in last lecture we have discussed, it is, you know that very well, qb upon 2 pi m, qb upon 2 pi m. Here already we can say that values already with you, charge, you know that b, all values with you. So if you set up the values and if you simplify, then 8 megahertz, this is, you can see that answer most IMP. So this is called simply the frequency of a particle. So this is your unsolved number 11. मगर लगे हाथ हमने यहाँ से unsolved number 12 को भी उठा लिया. So 11 and 12 combinedly we have discussed. You can see very easy. दो फॉर्मूले बिंदास फेंकने के हैं, मगर कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसे न्यूमेरिकल में कोई दम नहीं है. सो 11 and 12 वी हैव डिस्कस. आपको होमवर्क में वैल्यूज रख के ट्राई करना है, डोंट वरी, मैंने किया फिर भी. तो अपन लोग अब देखते हैं वन मोर. सो वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल. सो ये जो क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग है. सो जस्ट एनालाइज एटलीस्ट वन टाइम एंड देन विल थिंक. Okay friends, so now we'll think about one more. One more we can say that very important question, don't worry. अब जो अनसोल्ड नंबर 11 और 12 अपने डिस्कस किए, अब अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और क्वेश्चन. सो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. दिस इज, यू कैन सी दैट इलेक्ट्रॉन गन. यू कैन ऑल्सो कंसिडर कैथोड. नाम से टेंशन मत लो. यहाँ पे दैट मीन्स इन दिस रीजन वेरी लार्ज पीडी पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड अप्रोक्सीमेटली 2 किलो वोल्ट, यानी कि 2000 वोल्ट. इतना जबरदस्त पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करके इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया जाता है. सो इलेक्ट्रॉन, यू कैन सी दैट नाउ परफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन अंडर द पोटेंशियल ऑफ 2000 वोल्ट. तो जूम स्पीड से, यानी कुछ वेलोसिटी के साथ वो मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री लेता है. देखो तो इधर दो केसेस दिए हैं. इफ दिस चार्ज्ड पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड making 90 degree angle, that means when magnetic field is perpendicular to velocity of particle, when magnetic field is perpendicular to magnetic field, then discuss the trajectory of this charged particle like electron and also obtain the value of radius. So friends, अपन लोग अब इसका डिस्कशन करें. So case number 1 से मैंने स्टार्ट किया. You can see when magnetic field is perpendicular to velocity. So what is the trajectory of electron? If this electron or velocity of electron remains perpendicular to magnetic field, then obviously this electron perform this type of circular motion of radius r. So trajectory of electron is circular path. You can see this is your answer. But I would like to obtain radius. So radius of circular path r is equal to mb by qb. But there is a problem. Why? Because in this entire data, mass of electron, you know that, charge of electron, you know that, here applied magnetic field is also given, don't worry, but there is no idea about the velocity of this charged particle. Superb. ये कितनी वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में घुस रहा है वो हमें पता नहीं है. इसलिए मैं जो कहने जा रहा हूँ देखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस इवन जेडब्ल्यू नीट में भी आएंगे. जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल को कुछ पोटेंशियल डिफरेंस के तहत एक्सीलरेटेड किया जाए तब उसकी वेलोसिटी फाइंड करने का फंडा. इधर देखो, मैं न्यूमेरिकल ऐसे ले जाऊंगा, इसलिए जरा देखना इधर. सो व्हाट हैपन हियर? हियर पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड अंडर द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल v और पोटेंशियल डिफरेंस v. तो थोड़ा डिस्कस करते. जब भी कोई पार्टिकल है उसका, जिसे कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का वर्ड है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज पोटेंशियल, दैट मींस वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सो ऑब्वियसली पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड under the effect of potential difference v, that means there is some work is done per unit charge. यहाँ चार्ज की जगह वर्ड आएगा इलेक्ट्रॉन. सो अपन लोग WE कर देते. सो दिस इज द, वी कैन से दैट वर्क डन पर दिस इलेक्ट्रॉन.
तो इसमें से वर्क डन को सब्जेक्ट फॉर्म में लाओ सो इट बिकम्स ईवी और नॉट, यू कैन सी। मगर मैं जनरल फॉर्मूला डिराइव करना चाहता हूं, फिर अपने को टेंशन ही नहीं, W इज इक्वल टू QV। सो जब भी कोई पार्टिकल को, आज से ये याद रखने का है मोस्ट IMP, any particle is accelerated under the potential difference V, then this is the work is done on this particle, this one is the work done, we can say the perform on the particle। तो इतना वर्क होगा, मगर पार्टिकल के ऊपर जो वर्क हो रहा है उसके तहत पार्टिकल मोशन में आ रहा है। पार्टिकल मोशन में आए मतलब कौन सी एनर्जी पोजेस करेगा, इन मोशनल स्टेट, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी। सो दिस वर्क डन इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन का फॉर्मूला है QV, काइनेटिक एनर्जी 1/mv²। आज से ये चकाचक चाहिए दिमाग में, व्हेनेवर एनी चार्ज्ड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड or perform motion under the effect of potential V, then what's the, we can say the slogan, this QV work done available in the form of kinetic energy, V is the speed of the particle and m is the mass। तो ये जोरदार पॉइंट है। तो अपन लोग ने ये देखो यहाँ से डिस्कस किया। सो हियर यू कैन सी दैट ये सब कुछ तो मैंने समझ आपको कॉन्सेप्चुअल बताया। आपको क्वेश्चन अगर अपन लोग जिसे कह सकते बोर्ड रिलेटेड डिस्कस करें तो अपन लोग इधर लिखेंगे, हियर electron is accelerated under potential difference 2000 volt। पर बोले इधर तो 2 लिखा है मगर किलो यानी 1000। सो एक्सीलरेशन सॉरी इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड अंडर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2000 वोल्ट, देयरफॉर डायरेक्ट लिख देने का QV इज इक्वल टू 1/mv²। आज से स्लोगन फिक्स कब, एनी चार्ज्ड पार्टिकल परफॉर्म मोशन under the effect of certain potential, then this is the slogan। क्यों, मगर ये स्लोगन रट्टे नहीं मार रहे, इधर डिस्कस किया है। सो अपने को तो इंटरेस्ट है V में, सो आई कैन राइट 2QV upon mv²। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, इट इज √2Q कैपिटल V upon m, यू कैन सी दैट। तो ये जोरदार पॉइंट, ये भी शॉर्टकट के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। स्पीड गेन बाय पार्टिकल व्हेनेवर पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड अंडर पोटेंशियल, कैपिटल V है पोटेंशियल, डोंट फॉरगेट, व्हाइल स्मॉल v वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मिलते हैं वो इधर यूज करें। सो पहले वेलोसिटी फाइंड करना हो तो भी कर सकते हो, मगर अपन लोग इधर यूज करें। अब मैं हटा देता हूं क्योंकि ये कांसेप्ट आपको पता चल गया। ओके, सो नाउ रेडियस r इज इक्वल टू, और विल राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये रहा इक्वेशन नंबर 1, यू कैन सी m upon QB। सो m upon QB, और ये आ रहा है अंडर रूट, देखो V की वैल्यू रखी 2QV अपॉन m। इधर से मैं एक और शॉर्टकट बनाने जा रहा हूँ, Z डबल यूनिट का सुप्रीम। जरा देखना R इज इक्वल टू, इधर mm कैंसिल हो जाएगा, रूट है तो इधर चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन B को निकाल दिया, देखो अंडर रूट 2mV upon Q। This is the marvelous shortcut, धूम, most IMP for JEE नीट। आज आपको पता चलेगा कि ये JEE में कितना धूम मचाता है नीट के लिए। सुपर, एनी चार्ज्ड पार्टिकल accelerated or perform motion under the effect of potential difference V and it enters in magnetic field, then what is the radius of this particle? It is given by this equation। अब आपके पास सभी वैल्यूज है, so if you set up the values, चलो मैं बता रहा हूँ, B है अपने पास, जिसे कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ B गिवन, इट इज 0.15 टेस्ला, डोंट वरी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू नो दैट। पोटेंशियल यू हैव टू कंसीडर हियर 2000 वोल्ट, and charge, already charge of electron। set up these all values and if you find the value of radius, then answer 10 into 10 raised to minus 4 meters, so that means it is simply 1 mm। देखो ऐसा आएगा 1 mm, this is your answer। so first case we have discussed, if charged particle we can say that accelerated under the effect of potential difference V and applied magnetic field is remain perpendicular to velocity, applied magnetic field is perpendicular to velocity, then think about the trajectory तो अपने दिमाग में फटाफट पड़ी है, V is perpendicular to B, then it performs circular motion, and circular motion then we have also idea about the radius। मगर इधर थोड़ा छेड़खानी किया है वेलोसिटी। तो आज से जब भी अंडर पोटेंशियल डिफरेंस V बोले
तब सीधा शॉर्टकट अप्लाई करने का ये बोर्ड में इस तरह डिराइव करना है। JEE नीट में सीधा ये फॉर्मूला मोस्ट आईएमपी अपन लोग आज ऑल्सो सॉरी वी विल आल्सो डिस्कस दिस पॉइंट, डोंट वरी। अब इसका केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। सो केस नंबर 2 है इफ मैग्नेटिक फील्ड इज मेकिंग 30 डिग्री with the direction of velocity. चलो here perpendicular, magnetic field is perpendicular to velocity. Here magnetic field making 30 degree with velocity. Then you know that very well. This is the direction of magnetic field. This is, you can see that entry of particle and it enters in such a way that it forms 30 degree. याद करो कल का. And if charged particle enters making an arbitrary angle with magnetic field, then what happens? Then it performs simply, you know that very well, helical motion. याद करो, this is the helix path. Perfect. And what is this distance? It is called simply pitch. And what is this distance? This is called RH. RH यानी the radius of helix. तो सबसे पहले अपन लोग लिखेंगे type of trajectory. Here trajectory of charged particle is helix. चलो ये आंसर आ गया. Like here circular, here helix. So we would like to find radius of this helix. So radius of helix path, तो इसका शॉर्टकट हमने फॉर्मूला तो पहले यही उठाएंगे, mv अपॉन qb. मगर क्या चेंज था याद करो. Here we have to set up v perpendicular because velocity has two components, v parallel and you can see that v perpendicular. Here v perpendicular component plays very important role in, we can say that, performing motion. Like you can see circular and v parallel is very important to perform linear. याद करो, इसके कारण linear, इसके कारण चक्कर, इसलिए टोटल हेलिक्स. तो अपन लोग तो इधर सर्कुलर मोशन के लिए डिस्कस करें तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मगर v perpendicular का आंसर क्या आएगा? v sin थीटा. ये v cos थीटा. So instead of v perpendicular we can write v sin theta upon qb. ये अपना कल का फॉर्मूला. अब इसमें m, v, theta all values given. Set up the values. Okay, direct answer with me. So we'll set up, and if you set up the values, then RH, the radius of helical path, it is 0.5 mm. आपको values रख के चेक करना है, don't forget. So this is, you can see that very important point. अगर इसका pitch पूछे, pitch, so last lecture याद करो, pitch का फॉर्मूला हमने दिया था, pitch यानी speed multiply by t, यानी कि speed multiply by periodic time. speed का फॉर्मूला इधर लिया था, पैरेलल याद आया हो तो. So it is v cos theta and periodic time यानी 2 pi m upon qb. So this is simply formula for pitch. इसमें सभी values आप जानते हो. Set up the values and you will get answer 5.3 mm. ये values रख के check करना है, don't forget, most important. So this is your, we can say that, very important numerical we discuss. It is simply 4.19. अनसोल्ड नंबर 19. ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आइडियल क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट आईएमपी. वंस अगेन, देयर इज अ गन, इलेक्ट्रॉन गन और कैथोड, अंडर द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल 2 किलोवोल्ट, दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड and enters in magnetic field. In case number 1, magnetic field is perpendicular to velocity of electron. Then you have to decide the trajectory of this electron and also find the radius. Obviously, perpendicular to velocity, then trajectory of electron is circular path, radius of circular path mv upon qb. मगर ये बहुत ही सारा क्वेश्चन है, मुझे फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, वेरी आईएमपी, because in first part, just a minute, because in first part you can see that velocity is not directly given. So we have to obtain the value of velocity. How can we obtain it? So to obtain velocity, we have to think about some concept of potential, जो मैंने already discuss किया हुआ है. You know that very well. Under the effect of potential V, any charged particle perform motion under the effect of potential V, then work done QV is always available in the form of kinetic energy. ये स्लोगन याद रखना है. इसके ऊपर से ये मोस्ट टाइम की वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इधर रख के हमने मास्टरपीस फॉर्मूला डिराइव किया है.
आज ये क्या धूम मचाएगा वो देखेंगे लास्ट में, मोस्ट आईएमपी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल बट एक्सीलरेटेड अंडर द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल v। दिस इज द मोस्ट आईएमपी। उसके बाद कर दो सेकंड केस, बहुत इजी। कोई भी थीटा डिग्री पे एंट्री ले जो 0 डिग्री ना हो, 90 ना हो, 180, तो पार्टिकल अपन लोग जानते हैं कि हेलिकल मोशन करेगा। सो ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल इज हेलिक्स and what is the radius of this helix path? It is, we can say that mv perpendicular qb। helix path के radius के लिए perpendicular component, while pitch के लिए parallel component। you know that parallel यानी v cos theta, perpendicular यानी v sin theta। ये सब हमने last part 3 में डिस्कस किया था फ्रेंड्स। so this is very important numerical number 19 now। so first of all we have discussed 11, then 12, and now 19, and now be ready for the most time in number next। ओके सो अपन लोग अब देखने जा रहे हैं और क्वेश्चन जोरदार। तो सभी बंदों को विनती है कि अब वो जरा इधर ध्यान रखें। सो नाउ आई विल रीड डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमूव दिस पोर्शन। तो ये सभी न्यूमेरिकल्स हो जाने चाहिए आज का, जिसे कह सकते हैं होमवर्क। आप जानते हो किस तरह पार्ट 4 का भी ये सब कुछ पॉइंट एंट्री ले लेनी चाहिए। Okay friends, so now be ready for the next। so 3 best numericals, but out of these 3 this 19 number, you know that very well, most IMP question। now we'll think about number next question। number next, you can see first of all read the data। a magnetic field set up using a Helmholtz coils। Helmholtz coils है उसके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। यानी क्या होता है, ऐसी दो coils होती है and between these two coils magnetic field is produced along axis, a center to center, ये magnetic field। this is called Helmholtz coils। you can see the two coils, Helmholtz coils you can see। तो अब अपन लोग इधर ऐसी दो coils रखी है। मैं coils को किस तरह अरेंज करता हूँ देखो, पहले मैं डेटा बता रहा हूँ। between these two coils uniform magnetic field in short, ready। now these coils in a uniform small region has a magnitude of 0.75 टेस्ला। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले इधर देखो कोइल रखी है और एक कोइल इधर रखी है। सो ये एक्सिस सेंटर टू सेंटर, you can see like in this, these are the two coils। this is simply the axis of two coils। in between these two coils, these coils are called Helmholtz coils। ये क्या है अपन लोग डिस्कस करेंगे। ये कोइल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, कोइल्स के बीच का जो रीजन उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन सी B। let it is, you can see that along z axis, here are z, this is you can see that x, this is you can see that y। okay so you can see that y को सेट कर देते इधर, रेडी। okay now between these two coils magnetic field is already represented। if you think about electric field, here electric field suppose in the direction of x axis, this is applied electric field in the direction of x axis। अब ये रहा आपका चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल है वो जा रहा है परपेंडिकुलर टू B and E, you can see that means ये डायरेक्शन में। this is the direction of velocity of charged particle, रेडी। ऐसा हमने पढ़ा हुआ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, याद करो। अनडिफ्लेक्टेड कंडीशन, कंटिन्यूअस से शॉर्टकट दिया हुआ है, डोंट वरी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यू कैन सी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग z axis, here electric field along x axis, and velocity already perpendicular to this both fields, that means in upward direction। question क्या है, then you have to find, sorry, and this charge particle is accelerated। ऐसे नहीं जा रहा है इधर, जिसे कह सकते हैं ऐसे गन रखी, इसके थ्रू एक्सीलरेट किया गया है और ये पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है 1.5 किलो वोल्ट, यस 1.5 किलो वोल्ट पोटेंशियल के तहत ये पार्टिकल ऐसे एंट्री ले रहा है, यू कैन सी दैट। देन व्हाट्स योर टारगेट, देन योर टारगेट टू फाइंड if the beam having undeflected, you can see that if the beam remains undeflected, beam, here a beam देखो, this beam you can see that remains undeflected,
This is the most time word. ये मैंने दिखा बताया undeflected, without deflection. Then make a simple guess to what the beam contains. Why is the answer is not in it? Make a simple guess to what the beam contains and your target to find. Here simply charge to mass ratio. You can see the charge to mass ratio. You have to find charge to mass ratio. Okay. So next, this is your target, charge to mass ratio यानी Q by m. तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो अपन लोग जानते हैं कि ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है. पहले तो ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स देख लेते हैं. व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज्ड पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड? सो ऑब्वियसली दिस फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ, यू कैन सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड QE. ये आ गया QE. दिस इज द, यू कैन सी दैट इलेक्ट्रिकल फोर्स FE इज इक्वल टू QE. ओके. और अब जिसे कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, सो मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज, यू कैन सी मैग्नेटिक फोर्स याद करो यूं FBI, मगर इधर होगा FBV. F फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड, V. अपन लोग देखें B जा रहा है अंदर, Z एक्सिस अंदर, और जिसे कह सकते हैं वेलोसिटी है सिंपली ऊपर. तो ये जिसे कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऊपर. देखो चेक इट, दिस इज द मोस्ट टाइम मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड. आपको ना पता चले तो देखो ऐसे बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड, वेलोसिटी ऊपर, तो फोर्स नीचे. सो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग इन, यू कैन सी दैट there is something goes to wrong, you can see here, this is velocity, so sorry, this is the most magnetic force acting in this direction. So magnetic force acting in this direction, this is FM, this is magnetic force. और देखो ये कहानी फिक्स्ड होती है, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स आर ऑलवेज इन म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन. और अगर मुझे इसको अनडिफ्लेक्टेड पास कराना हो तो अपने लोगों ने डिस्कस किया हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट वेरी वेल, वी स्टार्ट विद दिस पॉइंट. Here beams remains undeflected, so electrical force is equal to magnetic force. Obviously electrical force QE, magnetic force QVB. ये हमने डिस्कस किया हुआ है VB. So what's the velocity? So velocity is equal to E by B. You know that velocity we have found. प्लस इधर ये देखो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल V जितने पोटेंशियल डिफरेंस के तहत आगे बढ़ रहा है. अब तो हम जानते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, हियर चार्ज्ड पार्टिकल is accelerated under potential difference V. So we can directly write QV is equal to 1/2 mv square. याद करो ये स्लोगन तो आपको पता ही होना चाहिए. यू नो दैट QV is equal to 1/2 mv square. अपने को चाहिए Q by m, यू कैन सी. तो ये पहला पॉइंट पढ़ा पार. अब इसमें जिसे कह सकते हैं कि QV 1/2 m, V की वैल्यू यहाँ से उठाते हैं, so it is E by B the whole square. So what is the answer? So Q by m, charge to mass ratio, it is simply, you can see that E square upon 2B square. यहाँ से आएगा V, so 2VB square. रेडी. अब फ्रेंड्स इसमें जिसे कह सकते हैं कि वैल्यूज रखने की है. सो चार्ज टू मास रेशियो, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन, डोंट वरी, पोटेंशियल वैल्यू गिवन, मैग्नेटिक फील्ड गिवन. सेट ऑफ द वैल्यूज, यू विल गेट आंसर 4.8 into 10⁻³ coulomb per kg. This is your answer, most IMP. If this charged particle passing through magnetic field in such a way that it remains perpendicular to magnetic field and perpendicular to electric field, and this particle or beam of particles, you can see that remains undeflected. This is the most IMP. Undeflected, then what is the charge to mass ratio? ये सब एक्सपेरिमेंटल वर्क है, मिलीकान भाई ने किए थे. मिलीकान्स के एक्सपेरिमेंटल वर्क है, उसने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करने के लिए ऐसा जिसे कह सकते हैं कि अनडिफ्लेक्टेड वर्ड अप्लाई किया था. और हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 2 में देखो अनडिफ्लेक्टेड मैंने स्लोगन दिया था, ये दोनों, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स and velocity always equal to ratio of electric field to magnetic field. This process is also called velocity selector method. By using this process, one can select the velocity
तो कितनी वेलोसिटी के साथ एक्सीलरेट करवाना है या कितनी वेलोसिटी के साथ एंट्री करवानी है वो अपन लोग चेक कर सकते हैं। और आप वेलोसिटी सेट कर सकते हो बाय कंसीडरिंग वैल्यू ऑफ ई एंड बी। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर थियरी। ये भी पोर्शन दिया है मगर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सो विल नॉट डिस्कस, डोंट वरी। बट इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, वो आईएमपी है, मेक अ सिंपल गेस एज टू व्हाट द बीम कंटेन्स, व्हाई इज द आंसर इज नॉट यूनिट। तो ये जिसे कह सकते हैं Q2 बाय और चार्ज टू मास रेशियो। अब देखो ये ड्यूटेरॉन रिलेटेड है, ये थोड़ा केमिस्ट्री। सो दिस इज Q2 by m and it is possible for simply you can see that deuteron and deuteron atoms। तो क्या ये फिक्स है 4.8 into 10⁻³ कूलम पर kg Q2m यानी चार्ज टू मास रेशियो ऑलवेज ये ड्यूटेरॉन के लिए फिक्स है? नो, ये सेम पॉसिबल बन सकता है किसके लिए, फॉर लिथियम और वी कैन से दैट He+ टू हीलियम, सो नो प्रॉब्लम। तो अपन लोग लिख सकते हैं दिस इज नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं है बिकॉज इट इज पॉसिबल फॉर He+2 Li+3 ऑल्सो। तो ये फिक्स नहीं कि 4.8 into 10⁻³ कूलम पर kg सिर्फ और सिर्फ ड्यूटेरॉन के लिए है। ड्यूटेरॉन के अलावा He+2 के लिए भी पॉसिबल है, लिथियम के लिए भी पॉसिबल है। तो ये न्यूमेरिकल में दम है मोस्ट टाइम पे, ये JEE के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो डोंट फॉरगेट दिस इज योर अनसोल्व्ड नंबर 20, 4.20, वेरी वेरी IMP। ये सब कुछ मैंने जो पोर्शन है रेड कलर का वो मैंने आपको पार्ट 2 में पढ़ा दिया हुआ है। ये शॉर्टकट हमने देखा था, अनडिफ्लेक्टेड, विदाउट डिफ्लेक्शन, कंटिन्यूअस, दिस ऑल पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड। सो ये मैंने बताया मोस्ट टाइम पे पॉइंट। दिस इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर because by using the values of electric field and magnetic field one can select the value of velocity most IMP। और वेलोसिटी वैल्यू इधर रख के हमने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड किया। ये चार्ज टू मास रेशियो यूनिक नहीं है, सिर्फ ड्यूटेरॉन के लिए पॉसिबल नहीं है, सबके लिए पॉसिबल बन सकता है, जैसे हीलियम के लिए भी और लिथियम के लिए भी। सो फ्रेंड्स वेरी IMP न्यूमेरिकल डायग्राम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये वर्ड से डरने की जरूरत नहीं है। हेल्महोल्ट्ज जो कॉइल्स है वो दो कॉइल्स हमने जेड एक्सिस पे रखी है और इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, डोंट वरी। ओके, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस हमने लिया अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, इसमें बोला है, डोंट वरी। तो ये डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के बिना पता चलेगा नहीं। और फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स, देखो मैग्नेटिक फोर्स वापस लेफ्ट हैंड रूल, ऐसा जाने का यूं करके यूं, ये है फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी। मगर अपने यहाँ पे फोर्स है वो जिसे कह सकते हैं फाइंड करना है, हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी। तो मगर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अंदर, देखो अंदर, और वेलोसिटी है इस साइड, सॉरी वेलोसिटी ऊपर है। तो मैंने ऐसा कर दिया, देखो अब आ गया ऐसा। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनसाइड, वेलोसिटी ऊपर हो तो फोर्स इस साइड, सो फोर्स एक्टिंग इन दिस। ऐसा पता ना चले तो स्क्रू मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, डोंट वरी, तो स्क्रू से भी फाइंड कर सकते हो। सो दिस आर ऑल NCERT रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वी हैव डिस्कस्ड, very very IMP। this is you can see that now NCERT term completed। अब अपन लोग JEE नीट शुरू करते हैं, मगर एक बार इसको देख लो अच्छी तरह। ओके, अब जो पोर्शन है बहुत ही IMP, पहले मैं कुछ JEE नीट शॉर्टकट्स डिस्कस करवा देता हूँ, बाद में अपन लोग MCQ शुरू करते हैं और लास्ट में कुछ क्वेश्चन है वो अपन लोग होमवर्क रिलेटेड रखते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स का होमवर्क सॉल्यूशन भी कहते हैं मगर अपन लोग करवाते ही है, और एट द एंड ऑफ लेक्चर भी ऐसा होगा तो कवर करेंगे। सो पार्ट 3 है वो हमने डिस्कस किया था, उसमें कोई ऐसा डिस्कशन होमवर्क रिलेटेड नहीं था, अब आज अपन लोग देंगे। तो अब सबसे पहले JEE नीट शॉर्टकट्स मैं जो लिखवाना चाह रहा हूँ सब कुछ मोस्ट टाइम पे, ये जो स्क्रीन है वो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, if velocity is perpendicular to magnetic field, सबसे ज्यादा धूम यही मचाएगा। और what is the type of trajectory of charged particle if velocity is perpendicular to magnetic field? Anybody? Obviously circular. So particle performs circular motion or word circular, then there is question about radius. So what is the radius? The radius of circular path, it is given by equation R is equal to mv upon qb।
चलो ये तो एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो अब सबसे पहला शॉर्टकट शुरू करते हैं। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। पी इज द मोमेंटम इन विच सर्कमस्टेंसेस इफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कांस्टेंट। चलो मोस्ट आईएमपी, radius of circular path is directly proportional to momentum if charge and magnetic field remains constant. ओके, सेम चार्ज और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोले तो ये शॉर्टकट। चलो दूसरा, दिस इज यू कैन सी दैट फर्स्ट। नाउ सेकंड, रेडियस रिलेटेड ही लेते हैं। अब आपको जिसे कह सकते हैं, मैं एक रेडियस का फॉर्मूला है वो एनर्जी के फॉर्म में डिराइव करता हूं। सो रेडियस in terms of एनर्जी, जनरली काइनेटिक एनर्जी ये लोग कंसीडर करेंगे, अभी देखा हमने एक्सीलरेटेड इसलिए। तो मोस्ट आईएमपी, तो सबसे पहले तो मैं ऐसा लिखूं तो किसी को कोई डाउट, ये रहा ना एमबी की जगह पी कर दिया। अब याद करो चैप्टर नंबर 5 वर्क पावर एनर्जी, यू नो दैट वेरी वेल। काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय 2m। So it implies that p square is equal to 2mk. So p is equal to under root 2mk. This is the most IMP formula. तो ये p इधर रख देते हैं। So radius r is equal to under root 2mk upon qb। धांसू इक्वेशन you can see, धांसू बोल रहा हूँ, यासू नहीं, most IMP। So धांसू formula you can see most IMP for JEE NEET। सो रेडियस r इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के, रूट की टोपी यहां तक की रखनी है, चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट अंडर रूट। सो मोस्ट आईएमपी। अब इसमें से थोड़े शॉर्टकट्स बनाते हैं। इफ सेम काइनेटिक एनर्जी, देखो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, इफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, टू चार्ज्ड पार्टिकल्स हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी एंड पासिंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि सेम काइनेटिक एनर्जी यानी के एंड मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म ले लो, यानी ये दोनों यूनिफॉर्म ले लो। सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यू कैन सी एम अपॉन क्यू। दिस इज द मास्टरपीस। जोरदार। कोई बोले बहुत ज्यादा ही आप बोल रहे हो मास्टरपीस नहीं है, अभी पता चलेगा, डोंट वरी। कुछ चीजें क्या होती है, जो बंदा जानता है उसको पता होता है अहमियत, जो जानते नहीं है अपन लोग क्या है कि पेरेंट्स की वैल्यू, जो पेरेंट्स को अच्छी तरह जानते हैं उसको पेरेंट्स की वैल्यू है, नहीं जानते उसको लगा कि ये तो उसकी ड्यूटी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं कि पेरेंट्स हमारे लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये तो उसकी ड्यूटी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ड्यूटी में भी टाइप्स होते हैं। अगर उसकी ड्यूटी है तो वो आपको इतनी अच्छी स्कूल में या अच्छे ट्यूशन में ना पढ़ाए, सरकारी स्कूल में भी पढ़ाए, उसका ड्यूटी पूरा हो जाए। तो फ्रेंड्स, पेरेंट्स के लिए बेस्ट पढ़ने का मौसम है, मैंने बोला। सो मोस्ट टाइम पी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम बाई क्यू। दिस इज द मास्टरपीस, वेरी आईएमपी। और समटाइम्स दे प्रोवाइड द सेम चार्ज। अगर ये कॉन्सेप्ट दे दे अलोंग विद दिस 2 पॉइंट्स सेम चार्ज, देन रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ओनली। ये भी धूम कॉन्सेप्ट, यू कैन सी दैट। ये जितने मैं बोल रहा हूँ धूम, ये सब पी जाना है, मोस्ट आईएमपी। तो ये हमने देखा आर का इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी और आर का टाका बीड़ा हमने एनर्जी के साथ। वेरी वेरी आईएमपी। कभी कभार ऐसा बोले सेम मास, सेम चार्ज, same magnetic field, then radius is directly proportional to root of energy. Very very important. So this is, you can see that most time the point we have discussed. अब अपन लोग R का टाका बिड़ते V के साथ, जो ऑलरेडी हमने एक बार तो डिस्कस किया हुआ है, फिर भी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। You can see most IMP पॉइंट सभी के सभी मुझे सब चकाचक चाहिए, क्योंकि अभी ये धूम मचाने वाले। अब डिस्कस करते हैं the radius in terms of potential V, most IMP potential V। रेडी? ये लेक्चर वाकई जोरदार बनने वाला है, इसको अच्छी तरह देखें। पोटेंशियल V, सो R इज इक्वल टू mv अपॉन qb, ये हम लोग जानते हैं। और अपन लोग अब ये भी जानते हैं, एनी चार्ज्ड पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड अंडर pdv, देन इट्स फॉर्मूला 1/mv²। तो इसके ऊपर से हमने v का फॉर्मूला डिराइव किया था, याद करो। v, स्मॉल v, सॉरी, स्मॉल v का शॉर्टकट, स्मॉल v इज इक्वल टू अंडर रूट, यू कैन सी दैट, अंडर रूट 2q कैपिटल V अपॉन m। ये आया 2q अपॉन कैपिटल V। ये इधर रखते हैं, तो
आर इज इक्वल टू, इसके ऊपर से मैंने शॉर्टकट बनाया था 1/b, और v की जगह ये फॉर्मूला रख के देखो, अभी आंसर नंबर 19 में, आंसर नंबर 19 में हमारा शॉर्टकट था 2m कैपिटल V अपॉन चार्ज। कोई बोले रट्टे मार के आते इसलिए लिख देते हो, तो आपको क्या करना है, इधर v की जगह रख के देखो, m कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर m आएगा, चार्ज कैंसिल हो जाएगा तो नीचे चार्ज, जो रूट में हो वो निकल जाए, रूट के बाहर हो रूट के अंदर नीचे डिनोमिनेटर में आ जाए। कोई बोले क्या बोले, कुछ पता नहीं चला, वो मैथ्स है तो पता चल जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि इजी है। कोई बोले ना चले समझाओ, तो चलो एक बार और समझ लेते हैं ताकि फंडे कुछ लोगों के बने। ये स्पेशल वही लोगों के लिए, कैसे देखो, आर एम अपॉन क्यू बी, इधर v की जगह रख देता हूँ √2 QV अपॉन एम। तो चलो अब सबसे पहले m को मैं ऐसा लिख सकता हूँ √m इंटू √m, और इसी तरह चार्ज को लिख सकता हूँ √q इंटू √q। अब आपको ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो रूट चार्ज कैंसर, तो 2mv √q v बाय। सो मार्वेलस पॉइंट, इसके ऊपर से शॉर्टकट बनाते हैं। समटाइम्स यू कैन सी दैट मास और चार्ज ऐसा कुछ है, इफ चार्ज पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड अंडर सेम पीडी बोले, सेम पीडी और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोले, सो आपको बिंदास सबसे पहले ये दोनों, सॉरी v और b कांस्टेंट, सो अगेन r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m/q। ये पूरी टोपी पहना नहीं की, देखो इसमें यहाँ तक ही था, तो ये जोरदार शॉर्टकट्स बनेंगे। अगर सेम पीडी देन √m/q, सेम काइनेटिक एनर्जी देन ओनली √m अपॉन q, ये पूरा अंडर रूट में आएगा, ये रूट में से बाहर आएगा। ये सब शॉर्टकट्स जोरदार है फ्रेंड्स, इतने कॉन्सेप्ट मुझे चकाचक चाहिए। इसके साथ में 2-3 पॉइंट्स और बता देता हूँ जो फ्यूचर में काम में आने वाले हैं। ओके, सो फिर अपन लोग शुरू करते हैं। एक बात याद रखो, आपको ज्यादातर 3 पार्टिकल के साथ खेलने का आएगा, अल्फा, प्रोटॉन एंड ड्यूटेरॉन। सो फ्रॉम टुडे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज सिंपली 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ये याद ही रख लेने का, न्यूक्लियस में पढ़ेंगे फिर भी इधर दे रहा हूँ। mass of deuteron is 2 times of mass of proton। रेडी, चार्ज का रिलेशनशिप डिराइव करते, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ ड्यूटेरॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन ऑलरेडी सेम। चलो ये सब दिमाग में ऐड कर देने का, इतने कंसेप्ट जिसके पास है मतलब वो राजा, डोंट वरी। अब अपन लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर, यानी कि अब JEE नीट रीजन में जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बेस्ट क्वेश्चन कवर करवाने जा रहा हूँ, और वो जिसे कह सकते हैं कि JEE में से उठाते हैं। ओके, सो क्वेश्चन है JEE नहीं मगर IIT 1988 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, IIT 1988। चलो, तो अब आपके पास है सब कुछ रेडी, दिस ऑल पॉइंट्स विथ यू, नो प्रॉब्लम। सो नाउ स्टार्ट। सो कंसंट्रेशन यू कैन सी दैट रिक्वायर्ड, बिकॉज दिस ऑल पॉइंट्स आर एप्लीकेबल, कहाँ ना कहाँ अप्लाई होंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। Okay friends, so question already asked in IIT 1988, IIT 1988, ये वर्ड जोरदार है IIT। काफी लोग है वो IIT में से एक चेंज कर देते हैं ITI, और मैंने कितनी बार बोला ITI का दूसरा नाम है ITI, वो ITI वाला यही करते रहते हैं ITI, मगर अभी जमाना ITI का है क्योंकि लेबर वर्क की वैल्यू बढ़ेगी। सो IIT ITI में जरा डिफरेंशिएट देखना। नाउ 2 particles x and y having equal charges and qx is equal to qy, ready, and being accelerated through the same potential difference, देखो same pd, both are accelerated under same pd, अभी जो कहानी थी वही same pd, and enter a region of uniform magnetic field, ready, okay,
then perform circular motion of radii r1 and r2, so find the ratio of the mass of the x and y. Radii है r1 and r2 radius, then find the ratio of m1 to m2, find the ratio of masses of x to that of y. चलो m1 by m2 फाइंड करना है, तो सबसे पहले pd आया, so what is the radius, अभी हमने फेंका फॉर्मूला जिसको शॉर्टकट दिमाग में होंगे फटाफट, न्यूमेरिकल होगा 2m कैपिटल V अपॉन चार्ज, याद आया। पीडी है मतलब दिमाग में एक बत्ती जलनी चाहिए, अगर बिल भरा हो करंट आता हो तो V सेम है, देखो मैग्नेटिक फील्ड सेम है, चार्ज सेम है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा रूट m, तो इसके ऊपर से m क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, सो मास का रेशियो mx अपॉन my इज इक्वल टू r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर। आंसर m इज ओवर IIT 1988, यू कैन सी। वन मोर, तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स, अपन लोग एक और आगे बढ़ते हैं, थोड़े कंसेप्चुअली और क्वेश्चन उठाते हैं, हटके तो पता और चले आपको, डोंट वरी। ओके, जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वो ऑलरेडी बहुत लेटेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ है, तो अपन लोग उठाते हैं। दिस इज JEE मेन 2018, JEE मेन, यू कैन सी दैट नाउ JEE 2018, चलो यानी 1-2 साल पहले की बात है। अब ये क्वेश्चन को उठाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। अब क्वेश्चन जरा अच्छी तरह देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। हियर 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल having the same kinetic energy, देखो वर्ड है same kinetic energy, these 3 particles having same kinetic energy are moving in a circular radius of RE, इसका रेडियस है RE, इसका रेडियस है RP, इसका रेडियस है R अल्फा रिस्पेक्टिवली, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो देंगे ही हर बार, रेडी। Then what is the relationship between RE, RP and R alpha, चलो ये तीनों का रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, रेडियस। अब काइनेटिक एनर्जी देखा, काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए 2mk अपॉन QB, याद करो डिराइव किया हुआ फॉर्मूला 2mk अपॉन QB। सो सेम काइनेटिक एनर्जी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, you can see there is a mistake up to here, मैंने कहा ओके, सो रूट m अपॉन q, इतना है अपने पास शॉर्टकट। अंडर रूट m बाई क्यू को बता जब सेम पीडी होता है तो ओके, तो ये शॉर्टकट हमने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था। तो अब अपन लोग इसका शुरू करते। सबसे पहले देखो RE, RP, R अल्फा, मास देखते, मास। तो अपन लोग शुरू करें RE रेस टू RP रेस टू, पहले अलग अलग फाइंड कर लेते ताकि पता चले। RE, so RE is equal to under root mass of electron upon charge of electron। अब आता है रेडियस फॉर प्रोटॉन, सो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब आता है रेडियस फॉर अल्फा, सो मास ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा। मगर आप जानते हो कि मास ऑफ अल्फा इज सिंपली 4 times of mass of proton and charge of alpha is 2 times of charge of proton, यानी कि radius of alpha is 2 times of under root mp upon 2 times of qp, so 2 cancel, so r alpha is equal to mp upon qp। ओके, तो अब इसके ऊपर से देखो ये दोनों का रेडियस प्रोटॉन का चेक करो, रेडियस अल्फा का चेक करो, सेम है, दोनों का रेडियस सेम है। मगर प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का मास तो कम होगा, तो ऑब्वियसली रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन दैट ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू अल्फा। ये रिलेशनशिप मिले मोस्ट IMP। देखो ये दोनों तो सेम आ गया। अब इलेक्ट्रॉन का मास सेम ही है, मास प्रोटॉन का MP, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा ही होता है, तो ऑब्वियसली रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आंसर आता है RE less than RP is equal to R alpha, most time be JEE main 2018 analyze, very interesting। रेडी, ओके, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि पता चले आपको ऐसे क्वेश्चन है वो किस तरह सॉल्व होते हैं। मैं एक ऐसा क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ
जो आपको ट्राई करना है। ऑलरेडी ये भी क्वेश्चन है वो ट्रिपल ई 2012 में पूछा हुआ है, सो JEE 2012 कंसीडर कर सकते हो। सो लिख दो अच्छी तरह, देख लो अच्छी तरह। हियर थ्री पार्टिकल्स, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन एंड अल्फा, D for ड्यूटेरॉन, डोंट वरी, ऑफ सेम काइनेटिक एनर्जी, same kinetic energy or circular trajectory and magnetic uniform magnetic field, don't worry, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से पास हो रहे हैं परपेंडिकुलरली, तो उसके रेडियस होंगे, इसका रेडियस है RP, ड्यूटेरॉन का RD और अल्फा का R अल्फा। तो ये तीनों के बीच का रिलेशनशिप डेवलप करो, यानी कि योर टारगेट टू गेट द रिलेशनशिप अमंग द रेडियाई, जैसे ऐसे यू हैव टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। चलो JEE नहीं मगर EEE 2012 होमवर्क, इसका आंसर मुझे चाहिए मोस्ट टाइम पे। चलो एक कदम और आगे बढ़ते हैं, अब अपन लोग कुछ ऐसे और क्वेश्चन उठाते हैं ताकि आपके कंसेप्ट बने, नो डाउट। ओके, सो नाउ check it one more. Okay, question बहुत अहम भी है। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड नॉर्मली इनटू मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम स्पीड। देखो क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नेक्स्ट, इसको हटा देते हैं, नो डाउट। ओके, सो मोस्ट टाइम क्वेश्चन, और proton and alpha particle are projected normally into magnetic field with same speed, chalo, no problem, ready, same speed. What will be the ratio of radii of the trajectories of the protons and alpha? चलो इसका रेशियो फाइंड करना है, रेडियस RP to R अल्फा। तो अपन लोग तो जानते हैं ना R इज इक्वल टू mv अपॉन qb। अब सबसे पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से पास हो रहे ऐसा बोला है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बाई चार्ज होगा। तो शुरू करते RP अपॉन R अल्फा, अपन लोग मास इस प्रोटॉन टू अल्फा, तो RP अपॉन अल्फा क्या होगा, Q, देखो पहले अपन लोग मास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, सो MP अपॉन N अल्फा, एंड चार्ज में उल्टा हो जाएगा Q अल्फा अपॉन QP, पता चला रेसिप्रोकल। तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स, चार्ज ऑफ अल्फा, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, QP, 2 टाइम्स, QP कैंसिल, MP कैंसिल, 2 2 जा 4, आंसर आएगा 1:2। सो आंसर है 1:2। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी अपन लोग बेसिक, ये सब बहुत फेमस गली है, इसमें बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी कॉम्पिटिटिव में पूछा हुआ है। ओके, अब अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि नीट रिलेटेड एक डिस्कशन कर लेते हैं ताकि लोगों को पता चले, मेडिकल वाले लोग अब रेडी हो जाए। ओके, तो अब मैं जिसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन है वो होमवर्क में दे रहा हूँ, जो ऑलरेडी जिसे कह सकते हैं कि एम्स में पूछा हुआ है, एम्स 2004 होमवर्क, एम्स 2004 बट होमवर्क ये ट्राई करना है। तो प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल moving with same velocity law, ready, in uniform magnetic field, then find, we can say, the ratio of their radii, बराबर लो होगा RP to R अल्फा। अब भी सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है, फिर भी आपको ट्राई करने की है। ओके, नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक आधे क्वेश्चन और उठाते हैं ऐसा। चलो एक मस्त क्वेश्चन है, सो बी अलर्ट, दिस इज ऑलरेडी आस्किंग, वी कैन से दैट एम्स for 2000, we can say that 19, chalo AIMS 2019 latest, so be ready, AIMS 2019। okay friends, so be alert, question है, proton and alpha particle enter uniform magnetic field, proton and alpha particle enter in uniform magnetic field and
perpendicular with the same speed मगर देखना बराबर same speed and the time period of revolution of alpha particle is double that of proton. Here the time period of alpha particle, sorry, the time period of revolution of alpha particle T alpha is 2 times of proton. ऐसा जिसे कह सकते हैं कि हमें एक्चुअली असर्शन के पॉइंट में दिया है, यानी कि ये सही है कि नहीं वो चेक करने का है. ओके, सो ये चेक करने का है ये सही है कि नहीं. पार्टिकल प्रोटॉन एंड अल्फा passing through uniform magnetic field with same speed, then periodic time of alpha is 2 times of periodic time of proton. ये सही है कि नहीं चेक करना है, नो प्रॉब्लम. पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 पाई m अपॉन क्यूबी. तो इधर सबसे पहले जिसे मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, सो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बाई क्यू, यूनिफॉर्म है तो. सो टाउ सॉरी पीरियोडिक टाइम अल्फा अपॉन पीरियोडिक टाइम ऑफ प्रोटॉन, दोनों का रेशियो ले लेते चलो. तो इधर पहले मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा, उल्टा हो जाएगा. सो पीरियोडिक टाइम ऑफ अल्फा अपॉन पीरियोडिक टाइम ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा, चलो ये तो आपको पता होना चाहिए, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन. सो 2 2 जा 4. यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, ये सही है, यू कैन सी. तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ एम्स 2019, डोंट फॉरगेट. ओके फ्रेंड्स, तो अभी अपन लोग एक आध और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपके फंडे बने. ओके, मस्त क्वेश्चन में देने जा रहा हूँ, सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट. चलो ये क्वेश्चन है वो ट्राई करने की है जो ऑलरेडी नीट 2015 में है. चलो बी ग्रुप नीट 2015, शॉर्टकट्स जितने बेहतरीन उतने कोई प्रॉब्लम नहीं, नीट 2015. So now next question from B group student NEET 2015 for B group. Okay friends, a proton and alpha particles both enter region of uniform magnetic field. Again proton alpha, uniform magnetic field. Ready? Enter uniform magnetic field moving at right angles to the field B if the radius of circular orbits for both the particles is equal. Radius equal, देखो radius already equal. Then and the kinetic energy acquired by proton is 1 million electron volt. Kinetic energy of a proton 1 million electron volt. Then what is the kinetic energy acquired by alpha particle? So this is your question. Find kinetic energy of alpha. मस्त क्वेश्चन है, मगर शुरुआत देखो रेडियस इक्वल. तो पहले रेडियस और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक मैं फेंक देता हूँ जो हमने डिस्कस किया हुआ है 2mk अपॉन क्यूबी. शॉर्टकट्स का कमाल है, बाकी कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ मोस्ट टाइम की. अब सबसे पहले आप देखो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का मास अफेक्ट होगा, चार्ज अफेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो हटा देते. तो यानी कि ऐसा हो जाएगा R इज इक्वल टू अंडर रूट. चलो अब आपको ऐसा कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ लोग बोले सर ये आप रट्टे मार के आते इसलिए आप ऐसा, हमें कैसे पता चले, कुछ पता ना चले, फेंको इक्वेशन. रेडियस इक्वल यानी रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अल्फा. अब ये फॉर्मूला फेंक दो बस. चलो अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, अंडर रूट 2 मास ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा अपॉन क्यू अल्फा इंटू बी. रेडी? अब दोनों बाजू रूट उड़ा देते हैं, ऐसे उड़ा देते मतलब समझ जाने का. हाँ 2 2 कैंसल. अब मास ऑफ प्रोटॉन भले रहा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितना है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चार्ज ऑफ प्रोटॉन भले रहा, बी तो गया. इधर मास ऑफ अल्फा बनेगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा आपका टारगेट है, और चार्ज ऑफ अल्फा ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन. अब अलविदा दोस्तों, सब कुछ कैंसल, 2 2 जा 4. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज हाफ ऑफ, दैट मींस 0.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा. देखो, सो दिस इज योर आंसर, जस्ट एनालाइज. So this is the most IMP question you can see, NEET 2015. Friends, very important numerical. तो अब ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ ताकि अपन लोग आज इसमें सिंपल जिसे कह सकते हैं मास्टरी हो जाए. तो ये हमने डिस्कस किया था NEET 2000, सिंपली आई कैन से दैट 15. ओके, तो
ऐसा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अब आपको होमवर्क में ट्राई करना है. ओके, सो बी अलर्ट. दिस इज ऑलरेडी आस्किंग, वी कैन से दैट नीट 1991. चलो तो 30 जिसे कह सकते हैं कि आंसर बने ऐसा कुछ क्वेश्चन बना दे या आंसर में थोड़ा चेंज है ऐसा. सो दिस कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड ड्यूटेरॉन नीट 1991 होमवर्क. ये प्लीज दिस इज फॉर होमवर्क. So deuterium of kinetic energy 50 kilo electron volt. Kinetic energy of deuterium 50 kilo electron volt is describing a circular orbit of radius 0.5. इसका रेडियस दिया है 0.5 ओके मीटर. In a plane perpendicular magnetic field B, the kinetic energy of proton that describes the circular orbit of radius 0.5. दूसरा पार्टिकल है प्रोटॉन, इसका काइनेटिक एनर्जी पता नहीं मगर इसका भी रेडियस है 0.5 मीटर. देन इन द सेम प्लेन इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए. चलो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. देन योर टारगेट टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन. होमवर्क वेरी आईएमपी. सो फ्रेंड्स यू कैन सी यू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे. अभी भी नेक्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा इसमें रहेंगे और होमवर्क वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे. बेस्ट डिपार्टमेंट है मगर जो मैंने शॉर्टकट्स दिए हैं वो शॉर्टकट्स अगर आपके दिमाग में है तो ये बहुत इजी हो जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट लेक्चर में और कदम आगे बढ़ेंगे. सो थर्ड नंबर फोर्थ नंबर सभी आईएमपी पार्ट से रिवाइज करो परफेक्टली और होमवर्क में सभी न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी बेस्ड. थैंक्स.